علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جن و انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ معزز بھائیوں، اس طرح کہ آپ کو قرآن دیا گیا ہے کہ ہر جمعرات کو عصر کے بعد انشاءاللہ کچھ منٹ کے لیے ہم اپنے رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس اللہ تعالیٰ کا ہم پر کیا حق ہے اور وہ حق کیسے ادا ہوگا، اور کیا وہ چیزیں ہیں کہ جو اس حق کو ادا کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہماری بات چیت ہوا کرے گی، جو عقیدہ منہج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اس میں ہم نے ابھی جو آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کی پیدائش کا، اس کے دنیا میں لائے جانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ وہ مقصد عبادت ہے اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اصل ہے یعبدونی، میری عبادت کریں۔ تو یہ وہ مقصد ہے جسے ہمیں جاننے کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسان جب کوئی بھی کام ٹارگٹ کو سامنے رکھ کر کے، مقصد سامنے رکھ کر کرتا ہے، تو پتہ ہوتا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے اور میں نے اس مقصد کو کیسے حاصل کرنا ہے، اور پھر اس کی کوشش بھی ہوتی ہے اس چیز کے لیے، اور اس کے لیے اپنا وقت بھی دیتا ہے۔ لیکن جب پتہ ہی نہ ہو کہ میں کس کام کے لیے آیا ہوں، یہ کام جو کر رہا ہوں یہ کام کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، تو نہ تو کام پہ دل لگتا ہے اور نہ ہی کام بہتر طریقے سے ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم دنیاوی لحاظ سے ہر کام کرتے ہوئے کوئی ٹارگٹ رکھے، مقصد رکھ کے سامنے رکھ کے کرتے ہیں، تو اس سے سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں، یہ زندگی کا کام کیا ہے، زندگی کس کام کے لیے ہے، اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ یہاں پر اسی بات کے بیان کرتا ہے کہ جنوں انسانوں کو پیدا ہی صرف اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، بلکہ اس کے بعد والی آیتوں میں اللہ کیا فرماتا ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، کہ نہ تو لوگوں سے کسی روزی کا رزق کا مطالبہ ہے اور نہ ہی کہ مجھے کھانا کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کیونکہ روزیوں کا دینے والا، اس کا مالک کون ہے؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہ بڑی قوت و طاقتوں والا ہے۔ کہنے کا مقصد، آج ہم دیکھیں اگر کہ ہمارا آنے کا مقصد کیا تھا دنیا کے اندر، اور ہم کس کام پر لگ گئے، کہ وہ کام جو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے ہم اس کام پہ لگ گئے ہیں، اور جو کام ہمیں دیا ہے، ہماری ذمہ داری میں ڈالا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ یہیں سے انسان کی بے وقوفی، حماقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر بھی، اگر آپ کا کوئی باس، آپ کا کوئی افیسر، کوئی بھی آپ کو کوئی ٹارگٹ مقصد دیکھ کر کسی کام کے لیے بھیجتا ہے، تو صرف اس نے بھیجا نہیں بلکہ اس کے بعد آپ کا وہ حساب کتاب بھی لے گا، پوچھے گا بھی آپ کو کہ آپ نے کام کیا نہیں کیا ہے تو کیسے کیا ہے۔ تو جس اللہ نے ہم کو عبادت کے مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے، وہ ظاہری بات ہے اس کا حساب بھی لے گا کہ دنیا میں اگر گئے تھے تو کیا کر کے آئے ہو۔ اور اسی لیے قیامت کے دن وہ 4 سوال ہیں کہ جن سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی انسان اپنا قدم نہ اٹھا پائے گا۔ ان میں سے 2 سوال ہے ہی اس زندگی کے بارے میں کہ زندگی کس کام میں لگائی تھی، زندگی کس چیز میں خرچ کی تھی، اور زندگی کے اندر بھی خاص طور پر جو جوانی کا وقت ہے، صلاحیتوں کا وقت ہے، اس وقت میں کیا کیا تھا۔ اس لیے ضرورت ہے انسان کو اپنے مقصد کو جاننے کی، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے معلوم کرنے کی کہ مقصد کیسے پورا ہوگا۔ ویسے تو عبادت تو ہندو بھی کر رہا ہے، کرسچن بھی، یہودی بھی، طرح طرح کے دنیا میں دین والے کر رہے ہیں عبادت بھی،
मुसलमानों के अंदर भी बेशुमार फ़िरक़े जमातें हैं। हर कोई अपने आप को ना कि सिर्फ इबादत करता है बल्कि अपने आप को हिदायत याफ्ता होने का दावा करता है। लेकिन बात दावों की नहीं, बात बातों की नहीं, असल जो है बात दावा जो है वो सच्चा किसका है? कौन है कि जो उस रास्ते पर चलकर अल्लाह की इबादत करता है जो रास्ता अल्लाह ने खुद दिया है, और कौन है जो अपने खुद साख्ता मन घड़त रास्तों पर चलकर कर रहा है? वरना तो हिंदू भी मंदिर पर बैठा ऊपर वाले, उसके यहाँ भी उसको ऊपर वाले का तस्वर है, और यहूदी नसरानी तो ख़ास तौर पर अल्लाह के नाम से उसकी इबादत कर रहे हैं। लेकिन कौन सही कौन गलत है, इसका फैसला कुरान सुन्नत से है। इसको जानने की हमें ज़रूरत है कि उस अक़ीदे को सीखें, उस मनहज को जानें, इबादत का वो तरीका मालूम करें कि जो अल्लाह ने हमको दिया है। तो अलबत्ता इस आयत में हमें इस बात की तंबीह की गई है कि जिन्नों इंसानों को पैदा करने का मकसद ही अल्लाह की इबादत है। तो ज़रूरत है इस मकसद को देखने की, इस मकसद को समझने की, और इससे हमें उन काफरों की, उन लोगों की बल्कि बेवकूफ़ी हमाकत का अंदाज़ा होता है कि जो अल्लाह की तरफ से मकसद लेकर आए हैं, उनको पता ही दुनिया में आए क्यों। किसी से पूछो दुनिया में क्यों आए हो, बल्कि किसी तालिब इल्म से हम स्कूल से पूछते हैं बेटा क्या बनना चाहते हो, तो क्या जवाब मिलेंगे आपको? कोई कहेगा डॉक्टर, कोई दूसरा इंजीनियर, कोई तीसरा प्रोफेसर, कोई चौथा और इस तरह के नाम लेगा। यानी टारगेट क्या है? दुनिया ही के मकासद, कोई बिजनेसमैन, कोई इस तरह के। ना कि सिर्फ उनकी बातें हैं बल्कि उनकी तमन्नाएं भी यही हैं, उनके दिल के इरादे भी यही हैं, और ना कि सिर्फ इरादे बल्कि उनकी कोशिशें भी इसी पर लगी हैं। खुद भी, उनके वालिदैन भी, उसका उनका पूरा माहौल माशरा भी उनको इसी तरह फोर्स कर रहा है, बेटा कुछ पढ़ लो, कुछ कर लो, कुछ बन जाओ। क्या बन जाओ? हाँ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, हर चीज़ बन जाओ, लेकिन मुसलमान किसी के ज़बान पर नहीं होगा कि मुसलमान बन जाओ। क्या ख्याल है? किसी की ज़बान पर नहीं होगा कि वो मकसद जिसके लिए दुनिया में आए हो उसको जानो, बल्कि पता ही नहीं उस मकसद। इससे बढ़कर बेदीनी की इंतहा क्या है? हम किसी काफिर माहौल मुआशरे की बात नहीं कर रहे। ये सवाल हमारे मुसलमानों की क्लासों में होते हैं और वहाँ से हमें इस तरह के जवाब मिलते हैं। तो किसी ने कहा, लिखा था कि पूरी क्लास में हर एक का जवाब यही था, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई दूसरे इस तरह के। सिर्फ एक लड़के ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं सहाबी बन जाऊँ। अब चाहे सहाबी बनता नहीं आदमी, लेकिन कम से कम उसके पीछे उस बच्चे की कोई तरबियत है, उसको कोई बताने वाला, उसके माँ बाप घर में कोई है कि असल मुसलमान असल कौन होता है, समझे ना? तो ये वो चीज़ है जिसे हमें जानने की जरूरत है। और वैसे भी अगर फर्ज करो कोई इस तरह का कोई जवाब दे भी दे, तो उस पर फिर देखे किस तरह से हमसे लोग कि कैसा जवाब दे दिया इसने। और असल जवाब यही है, क़यामत के दिन हमें पता चलेगा कि दुनिया में क्यों आए थे, किस मकसद को लेकर आए थे, इसको कहाँ तक पूरा किया है। क़यामत के दिन जब हिसाब किताब के लिए खड़े होंगे तो वहाँ पर इसी बात का पता चलेगा। तो खैर ज़रूरत है इस मकसद को समझने की। इसी मकसद की खातिर अल्लाह ने तमाम नबी रसूल भेजे। 1,24,000 जो आप सुनते हो अल्लाह के नबी रसूल आए, उन सभी का आने का मकसद भी यही था। वलक़द बअथना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। अल्लाह माता है कि हमने हर कौम के अंदर रसूल भेजा, नबी भेजे, बल्कि एक एक वक्त में कई नबी भेजे। किस लिए? अन अअ्बुदुल्लाह, कि ताकि लोग अल्लाह की इबादत कर लें, वज्तनिबुत ताग़ूत, और गैर अल्लाह की इबादत से बच जाए। हर नबी की दावत यही, हर नबी क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। हर नबी की दावत ये। हाँ ठीक है, नबी लोगों का अखलाक व किरदार भी उनको सिखाते, उनको आदाब भी सिखाते, दुनिया के मामलात में भी उनकी रहनुमाई करते, लेकिन असल जो इंसान का दुनिया में आने का मकसद है वो उनको बताते कि तू क्यों आए हो और अल्लाह की इबादत कैसी होगी। तो हर नबी का दुनिया में आने का मकसद ये था कि एक अल्लाह की पहचान करवाएं, एक अल्लाह की मार्फत उनको करवाएं कि अल्लाह कौन है, तेरा रब कौन है, उस रब का तेरे ऊपर हक क्या है। मैं कि हमने हर कौम के अंदर नबी भेजे ताकि लोग एक अल्लाह की इबादत करें और गैरुल्लाह की इबादत से बच जाए। तागूत का लफ्ज़ आप पढ़ते सुनते रहते हो, तागूत क्या होता है? वैसे तो बाद उलमा ने आसान सा उसका माना किया है कि हर वो काम जो शैतान की तरफ से है वो तागूत है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम हैं,
फरमाते हैं कि ताऊत क्या है कि हर वो चीज़ जिसमें इंसान अल्लाह से हटकर किसी और की इबादत करे तो जो अपने आप की अपनी इबादत करवाता है वो ताऊत है, या अल्लाह के हुक्म से निकल कर किसी की इताअत करे, किसी की ताबेदारी करे, ये सभी क्या है, ये ताऊत है। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने इस हक़ को बयान करते फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, कि तेरे रब ने ये फैसला कर दिया है कि इबादत अगर करनी है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की। हम जिक्र किया है इबादत तो कर रहे हैं लोग दुनिया के अंदर, तरह तरह के दीन वाले मज़ाहिब वाले बातें कर रहे हैं, लेकिन किसकी हो रही है? अक्सर बेशतर अल्लाह से हटकर औरों की, उनकी बातें हो रही हैं। बाद वो लोग जो अल्लाह का नाम भी लेते हैं उनके यहाँ भी अल्लाह की इबादत के सिवा औरों की इबादत होती है। तो अल्लाह फरमाता है कि रब का ये फैसला है कि नहीं तुम इबादत करो मगर सिर्फ अल्लाह की। ये देखिए यहाँ पर एक बड़ी अहम चीज़ है इस आयत के अंदर और साबिक़ आयत के अंदर, और अगली आयत के अंदर भी वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ, कि अल्लाह की इबादत करो उसके साथ किस तरह की शिरक न करो। इनके अंदर दो चीज़ें हैं, एक है कि अल्लाह के सिवा औरों की इबादत का इनकार, और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का इकरार। ये इनकार और इकरार यही तौहीद है, इनकार और इकरार यही तौहीद है। इनकार किसका? अल्लाह के सिवा औरों की इबादत का इनकार, किसी की इबादत नहीं, कोई इंसान हो, कोई जिन हो, कोई फरिश्ता हो, कोई नबी वली हो, कोई भी कितना ऊंचा क्यों ना हो अपने मर्तबे मुकाम में, इबादत अगर कायनात में है तो सिर्फ अल्लाह की है, किसी की इबादत नहीं। और ये है इनकार कि औरों की इबादत का इनकार, कि किसी की इबादत नहीं, अगर है तो क्या है, किसकी? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की, सिर्फ अल्लाह की इबादत। ये है तौहीद और यही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर दोनों चीज़ें हैं कि ला इलाह के अंदर इनकार है और इल्लल्लाह के अंदर क्या है? इकरार है। इनकार है अल्लाह के सिवा औरों की इबादत का और इकरार है सिर्फ अल्लाह की इबादत का। और जब तक तौहीद इस अंदाज से नहीं इंसान अपनाता उस वक्त तक मुसलमान नहीं। मक्का के मुशरिकीन का जुर्म यही था, वो यही कि अल्लाह को नहीं मानते थे अल्लाह को मानते थे, अल्लाह की इबादतें करते थे, अल्लाह से दुआएं करते थे, अल्लाह के लिए ज़िबा करते थे, अल्लाह के लिए उनके बड़े बड़े अमाल थे, लेकिन शिर्क के साथ साथ। दूसरे अल्फाज में अल्लाह का इकरार तो था लेकिन औरों का इनकार नहीं था। और अफसोस कि आज भी बहुत से मुसलमानों का हाल ये है कि वो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह रब है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह राज़िक है, सारा कुछ कहेंगे, लेकिन क्या औरों का इनकार किया है कि सिर्फ रोज़ी अल्लाह देता और नहीं देते? औरों का इनकार किया है कि सिर्फ अल्लाह से दुआ करनी, औरों से नहीं करनी? तो मुशरिकीन मक्का का यही जुर्म था। कभी आसानी होती तो अपने बुतों से मांग लिया, अपने वलियों बुजुर्गों से मांग लिया, मुश्किल होती तो अल्लाह से मांग लिया। कभी अपने बुतों के लिए चढ़ावे देते, मनते चढ़ा दी उनको दे दिया, कभी अल्लाह के लिए कुर्बानियाँ दे दी। समझे? उनका भी जुर्म यही था। ऐसे इस जुर्म की वजह से अल्लाह ने उनको क्या फरमाया? कुल या अय्युहल काफिरून, दो टोक तौर पर कहा कि ए काफिरों। उनके हज उम्रे, उनके तवाफ, उनके सारी बातें रियासतें अल्लाह ने किसी चीज़ को नहीं देखा कि तुम मेरी इतनी इबादत कर रहे हो। अबू जहल के बारे में कहा जाता है कि उसने 52 हज किए थे, 52 हज, और कोई बड़ी बात नहीं है, मक्का में रहता था, मक्का का सरदार था, हर साल हज करता होगा, क्या मुश्किल है? समझे ना? लेकिन उसके इतने हज, उसकी इतने तवाफ, तवाफ कितने किए होंगे, बैतुल्लाह में रहने वाले, समझे ना? कितने उसके उम्रे होंगे, कितनी उसकी बातें रियासतें होंगी, लेकिन क्या है कि जहन्नम में काफिर है। किस वजह से? क्योंकि इस ईमान के अंदर शिर्क की मिलावट है। अल्लाह का इकरार तो है लेकिन औरों का इनकार नहीं है। इसलिए भाइयों ये बात समझने की जरूरत है। अफसोस कि आज बहुत से मुसलमानों का ये हाल, उनका ये अकीदा कि अल्लाह भी देता है, फलां भी देते हैं, अल्लाह भी सुनता, फलां भी सुनते हैं, हाँ वो भी देने, अल्लाह ने बड़े उनको इख्तियारात दिए। और यही बातें जो आज हम सुनते हैं ये आज की नहीं, बहुत पुरानी, उनकी वही बातें होती थी। उनकी बिलात मनात हुबल, जिनको अल्लाह के सिवा समझते थे, उनको समझते थे यही कि अल्लाह वाले हैं, अल्लाह ने इनको बड़े इख्तियारात दिए हुए, इनसे मांगो ऐसे जैसे अल्लाह से मांग लिया। उनके यहाँ भी यही फलसफे थे। इसलिए भाइयों अकीदा तौहीद को समझने की बड़ी अशद ज़रूरत है। इसी तरह सूरत नाम में अल्लाह ने आयत बयान की है जिसमें काफ़ी हकूक़ बयान किए, उसमें सबसे पहला हक़ क्या बयान किया? अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ। सबसे पहला हक़ क्या है कि अल्लाह के साथ शिरक न करो। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जिसको देखना हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से जाने से
जाते हुए सबसे आखिरी वसीयत क्या थी, वो इस आयत को पढ़े, कुल तालू अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, आओ तुमको पढ़कर सुनाऊं कि तुम्हारे रब ने तुम पर क्या हराम किया है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ हराम की है वो शिरक है, वो शिरक है, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना, इबादत अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना। इससे पहले कि हम दर्स खत्म करें, आगे सिर्फ एक हदीस बयान करके बात खत्म करेंगे। इबादत क्या चीज़ है, इबादत क्या है जिसका हम बार बार नाम ले रहे हैं, आप भी सुनते कहते रहते हैं हमेशा। अगर किसी से पूछा जाए इबादत क्या है, इबादत भाइयों इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह बड़ी उसकी अदीम तारीफ बयान करते हैं, इस्मुन जामिउन, कि ऐसा जामे तीन लफ्ज़ है किस चीज़ का, लिकुल्लि मा युहिब्बुहुल्लाह तआला व यर्दा, हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला बंदे से चाहता है और उसको पसंद करता है, चाहे उसकी बातें हों, चाहे उसके आमाल हों, चाहे ज़ाहरी चीज़ें हों या बातनी दिल की चीज़ें हों, ये सभी क्या है, इबादत है। तो इसका माना क्या हुआ कि हर वो बात जो ज़बान से निकालते हैं, अगर वो अल्लाह के हुक्म से है तो क्या है, अल्लाह की इबादत है। अगर वो अल्लाह की इबादत है तो सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। हर वो अमल जो हम अपने आदा से करते हैं, अगर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए है तो अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की इबादत है तो अल्लाह के लिए होनी चाहिए। दिल के अमाल भी, दिली हमारे तसव्वुरात भी, अकायद भी, तवक्कुल, भरोसा, खौफ, डर, सारे दिल के मामलात, इनसे भी अगर अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है तो इबादत है अल्लाह की। अगर अल्लाह से हटकर किसी और के ऊपर तवक्कुल, भरोसा है, उसका डर खौफ है, उससे उम्मीदें हैं, तो ये क्या है, यही शिर्क है। इसलिए समझने की ज़रूरत है कि तौहीद क्या होती है, शिर्क क्या होता है, इबादत क्या होती है। तो इबादत हर वो चीज़ जो इंसान नेक की इबादत समझ कर करता है, नेक के सवाब की नीयत से करता है, लेकिन ये नहीं कि जो भी कर ले, बल्कि जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है, जो अल्लाह हमसे चाहता है कि हम ये चीज़ करें। और अल्लाह ने ये नहीं कि हम ऐसे ही छोड़ दिया, बताया नहीं कि हाँ अल्लाह ताला हमसे चाहता है क्या नहीं चाहता। कुरान करीम भरा पड़ा है कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। खैर आखिर में एक हदीस बयान करके बात खत्म करते आज की। सईदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े जलील क़द्र आलिम थे, बल्कि क़यामत के दिन उलमा की क़यादत करते हुए आएंगे। तो फरमाते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवार था सवारी पर, तो आप फरमाते या मुआज़ अतदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, ए मुआज़ जानते हो कि बंदों पर अल्लाह का क्या हक़ है, यानी इंसानों पर, हम पर अल्लाह का क्या हक़ है, हम पर कि हम वो हक़ अल्लाह का अदा करें, और अल्लाह के ऊपर बंदों का क्या हक़ है, यानी हमारा हक़ अल्लाह के ऊपर क्या है। तो हम फरमाते अल्लाह व रसूलुहु आलम, कि अल्लाह उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो आप मानते हैं कि हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद अन यअबुदूहु व ला युश्रिकू बिही शैआ, कि अल्लाह का हक़ हम पर, बंदों पर क्या है, अन यअबुदूहु, कि उसकी इबादत करें, व ला युश्रिकू बिही शैआ, उसके साथ किसी को शरीक ना करें। वही ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का इकरार और उनका इनकार, समझे ना। तो अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक ना करें, कि अल्लाह दुआ है तो सिर्फ अल्लाह से, उम्मीदें तमन्नाएं हैं तो सिर्फ अल्लाह से, डर खौफ है दिल में, वो डर खौफ जो गैबी डर खौफ होता है वो सिर्फ अल्लाह का, समझे ना। ये सारी बातें अल्लाह के लिए। यहाँ बुदू सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, वला शरीक बिही, उसके साथ किसी को शरीक न करें। ये वो हक़ है अल्लाह ताला का हम पर, सबसे बड़ा हक़। और बातें हैं कि बंदों का हक़ अल्लाह पर ये है, अल्लाह युअज़्ज़िब मन ला युश्रिकु बिही शैआ, कि जो अल्लाह के साथ शिरक नहीं करता अल्लाह उसको अज़ाब ना दे। बड़े आसान सा फार्मूला अल्लाह के अज़ाब से बचने का, इतना आसान फार्मूला। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसको अज़ाब न दे जो शिरक नहीं करता, चाहे गुनाह हो गए, ज़िना बदकारियाँ भी हो गई और भी जुर्म हो गए होंगे, लेकिन शिरक ना किया हो, क्योंकि शिरक वो जुर्म है जिसका हम आगे पढ़ेंगे मज़ीद, कि जिसके अल्लाह ने ना मुआफ़ करने का फैसला कर लिया हुआ है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, कि अल्लाह शिरक को माफ़ नहीं करता, उसके सिवा उसके शिरक से कम दर्जे के जो भी गुनाह है अल्लाह ताला जिसके चाहे माफ़ कर दे। वो आदमी हम सुनते हैं कि इसने 100 आदमी कत्ल किए थे, अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया, समझे ना। 100 आदमियों के कातिल को माफ़ कर दिया, और कितने बड़े बड़े जुराइम करने वालों को अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। लेकिन शिरक वो जुर्म है जिसको अल्लाह ने माफ़ नहीं करना। लेकिन अफसोस कि जितना बड़ा शिरक बड़ा जुर्म है, अल्लाह के यहाँ जिसके माफ़ी ना होने का फैसला है, शैतान यही काम लोगों से ज़्यादा करवा रहा है।
अगरचे नमाज पढ़ने वाले मुसलमान बहुत कम है, लेकिन इन नमाजियों के अंदर कितने वो लोग हैं जो नमाज पढ़ने के बावजूद शिरक कर रहे होते हैं। रोजे रखने वाले, हज करने वाले, हज की तैयारियां हो रही हैं, हज जा रहे हैं माशाल्लाह, मिलियनों की तादाद में हर साल मिलियनों लोग हज करते हैं। क्या समझते हैं कि सभी के सभी हाजी अकीदा तौहीद पर है? वहां पर भी जाकर वो ढूंढ रहे होते हैं कि यहाँ पर भी कहीं मनते चढ़ावे देने की तो जगह मिलती है, ढूंढ रहे होते हैं वहां पर। कहने का मकसद कि इस तरह का अकीदा, शिर्क का अकीदा रखते हुए अल्लाह के यहाँ किसी तरह की इबादत कोई काबिल कबूल है। इसी तरह इसलिए आज का हमारा जो मौजू है वो क्या है कि इबादत की बुनियाद ही तौहीद है। इसी तौहीद पर तमाम इबादतें हैं। तौहीद खालिस है, नमाज भी कबूल है, रोज़ा भी कबूल है, हज उम्रा हर चीज़ कबूल है। अगर तौहीद के अंदर खलल कमज़ोरी है तो अभी हम मक्का वालों की बातें कर रहे थे कि जो हमसे कहीं बढ़कर हज उम्रे करते थे, इबादत करते थे, लेकिन अल्लाह ने फिर भी उनको खुले तौर पर दो टोक तौर पर काफिर कहा। किस लिए? क्योंकि उनकी इबादत के अंदर शिरक था। इसलिए ज़रूरत है इस तौहीद को समझने की, इसको जानने की। तो ये है वो सबसे बड़ा अजीम तीन हक अल्लाह ताला का बंदों पर, और बंदा अगर ये हक अदा कर देता है अल्लाह की इबादत का तो फिर अल्लाह ताला ऐसे बंदे को अज़ाब नहीं देगा। अल्लाह का वादा है। हम मज़ीद इंशाअल्लाह आगे पढ़ेंगे इसी हवाले से। अल्लाह ताला के मज़ीद वादे भी। बारकल्लाहु फीकुम व जज़ाकुमुल्लाह खैर व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।